Welcome to all of you. So, yesterday we had the philosophy optional paper, and we were all looking for it as if what new UPSC is going to ask. Although I was very much sure that most of the questions will be repeat of PYQs only, because the examiner cannot transcend the syllabus, they cannot pass the limits of the syllabus. So they, and in the syllabus they have given very specific kind of topics, so the examiner is bound to ask question from those topics only. And this we have seen in the Western philosophy, especially Western philosophy mostly is PYQ based, or some sort of refurbishing of those PYQs. थोड़ा सा रिफर्बिशिंग reframing टाइप उन्होंने की है, and not much in Western section. Although, as yesterday I also shared with you on the group, that there were certain nuances in these questions also. So, if a student has addressed those nuances, definitely they are going to get excellent marks. If they have missed those nuances, then marks would be somewhat reduced, because examiner, if the paper is on expected line, then examiner wants your answer to be समथिंग मोर देन एक्सपेक्टेड, है ना, थोड़ा सा वेरी गुड से एक्सीलेंट कैटेगरी का आंसर होना चाहिए, उसी हिसाब से फिर मार्क्स मिलते हैं. So in this video we'll discuss the Western section, then we'll discuss the Indian part, and accordingly paper 2 also. So yes, so this is the question paper of Western philosophy, and one announcement that we are starting with the philosophy intensive writing program for the mains 2025. This program again is based on that assumption that PYQs make the backbone of this philosophy optional preparation, and we have ensured that in this 16 tests of intensive writing, we are including at least 40% of the paper which is either refurbishing or reframing of the PYQs. PYQs in a way that we are focusing on their essence, that we will keep the essence but will change the wordings, or maybe the directive word. जैसे कि पिछली बार एक्सप्लेन पूछा था, नाउ विल आस्क यू क्रिटिकली एग्जामिन, नाउ slight difference will be there. So 40% question will be this, 60% question will be absolutely new. This way you will be prepared for both the new kind of question that may be asked in the next year, or the PYQ based questions which has again over a period of time been asked by UPSC again and again. So this is the only program for writing practice that you need for philosophy optional. So this was the announcement. Now let's go to question number 1. Differentiate between Plato's and Aristotle's conception of form. So you all know that Plato and Aristotle हमने डिस्कस भी किया था. We were discussing the introductions. जो हमारी लास्ट के डेज में, लास्ट फ्यू डेज के अंदर कुछ फ्री सेशन हुए थे, देयर वी डिस्कस्ड कि कभी भी किसी क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस कैसे करना है. तो यहाँ पे अगर चाहें आप तो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं दैट दिस फॉर्म particularly plays a very important role. It plays role of a metaphysical unit in the philosophy of Plato, because according to Plato, the forms or ideas are the ultimate reality, and through this ultimate reality is trying to explain the world. Whereas for Aristotle, the form cannot be the ultimate reality. Because if we believe form as the ultimate reality, then there is a problem of how these eternal unchangeable forms explain the changing world. Isn't it? You can compare with the Buddhists also. Buddhists used to say
Arthakriyakarithvam karanalakshana means the causal efficiency must be there in the ultimate reality. But the forms are unchangeable, eternal. So, how can eternal, unchangeable things have causal efficiency? So, Aristotle used to say it's the same thing. How can unchangeable forms cause changeable objects? So, we have to accept a basic unit of reality which is also dynamic in nature, which is also changing in nature. So, he came up with the notion of admixture of form and matter. That ultimate reality is that which is composed of both form and matter. ठीक है, तो प्लेटो ने क्या किया था, एक तरह का डुअलिज्म कर दिया था. मैटर एक तो मटेरियल वर्ल्ड है और एक द रियल वर्ल्ड है विच इज़ द वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स. एरिस्टोटल ने अननेसेसरी डुप्लीकेशन को ख़त्म किया. he came with only one world theory, which is the theory based on the empirical observation, categorization and classification of the natural world, and iske through he explained the world properly, also the change in dynamism. So इन्होंने पूछा है कि डिफरेंशिएट बिटवीन. सो प्लेटो के लिए ये जो फॉर्म है यही अल्टीमेट रियलिटी है. एरिस्टोटल के लिए फॉर्म अल्टीमेट रियलिटी नहीं है. एरिस्टोटल के लिए एडमिक्सचर ऑफ फॉर्म एंड मैटर अल्टीमेट रियलिटी है. बिकॉज अगर हम नेचर को ऑब्जर्व करें, आप देखोगे एरिस्टोटल वॉज अ एम्पिरिसिस्ट, अ रियलिस्ट पर्सन, अ नेचर ऑब्जर्वेंट. सो इफ यू लुक एट द नेचर, we never see that forms isolatedly reside independent of the objects of which they are the form. The separation can only happen in mind and not in reality, says Aristotle. Okay, so this way you can criticize also Plato with Aristotle and explain that Aristotle said that this dualism was unnecessary. The conception of form of Aristotle is more grounded in the physical world. What becomes and what it becomes, वो वाली आप डिक्टम भी लिख सकते हो. What becomes is matter and what it becomes is form, but it is not separate from it, it is within it. Every substance has its own entelechy, its own actuality, which is the form, but it is not separate from it. ठीक है, तो इस तरीके से आप 150 वर्ड्स में इसको आंसर कर सकते हो सेटिस्फैक्टरली. यू विल डेफिनेटली गेट अराउंड 60% मार्क्स विद दिस आंसर. हाउ डज कांट रेस्पॉन्ड टू ह्यूम्स स्केप्टिसिज्म विद रिगार्ड टू ए प्रियोरी जजमेंट? नाउ इफ यू सी, ह्यूम accepted a priori judgment but not with respect to empirical knowledge. He accepted a priori. He actually did this fork, what we call Hume's fork. The relation of ideas and matter of fact. ठीक है, तो यहाँ पे ह्यूम क्या बताता है? ह्यूम ने बताया कि ए प्रियोरी नॉलेज पॉसिबल है, बट कहाँ पे? मैथमेटिक्स में, अलजबरा में. ठीक है, ये सब मैथमेटिक्स का. तो यहाँ पे पॉसिबल है, एम्पेरिकल फैक्ट्स में पॉसिबल नहीं है. द सन विल राइज टुमारो इज नॉट एन ए प्रियोरी फैक्ट. एवरी इवेंट हैज अ कॉज इज नॉट एन ए प्रियोरी फैक्ट फॉर ह्यूम. तो अब जब एम्पेरिकल नॉलेज को उसने बता दिया कि ये सिर्फ कंटिंजेंट है, प्रोबेबल है, ए पोस्टीरियोरी है, प्रोबेबिलिस्टिक है, यहाँ पे साइकोलॉजिकल लॉज लगते हैं एसोसिएशन के, तो क्या हुआ? साइंस के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया, क्योंकि साइंस जो है मैटर ऑफ फैक्ट से डील करती है. साइंस डील्स विद मैटर ऑफ फैक्ट. तो कांट रोज टू द ओकेजन एंड ही वांटेड टू गिव अ बिफिटिंग रिप्लाई टू द स्केप्टिकल कंक्लूजन ऑफ डेविड ह्यूम. तो कांट रोज एंड विद हिज synthetic a priori judgment, he stated that a priori judgments are definitely possible even in the empirical knowledge, because empirical knowledge is not knowledge. Knowledge is knowledge proper, जिसमें तीनों एलिमेंट होते हैं, नेसेसिटी, यूनिवर्सलिटी एंड नोवेल्टी. तो एम्पेरिसिज्म नॉलेज नहीं होती. एम्पेरिसिज्म से रॉ डेटा आ रहा है, बाकी वो
फिर कंडीशंस ऑफ माइंड है हमारी जो इम्पोज होती हैं, और वो कंडीशंस ऑफ माइंड जो है वो यूनिवर्सल नेसेसरी है। सो उनके अंदर से एप्रियोराइनेस आती है। रॉ मटेरियल में एप्रियोराई नहीं है, बट कंडीशंस ऑफ माइंड जो है वो उसके अंदर एप्रियोराई एलिमेंट लेके आती है। एंड दैट्स वाई एंड दे आर यूनिवर्सल फॉर ऑल द पर्सन बिकॉज दे आर सेम फॉर ऑल। तो इस तरीके से कांट ने उस चीज़ को काउंटर किया दैट डेफिनेटली सिंथेटिक एप्रियोराई जजमेंट आर पॉसिबल नॉट ओनली इन मैथमेटिक्स बट ऑल्सो इन फिजिक्स। यहाँ पे 7 + 5 = 12 वाला आर्ग्यूमेंट, और यहाँ पे फिजिक्स में एवरी इवेंट हैज़ अ कॉज। तो यहाँ पे किस चीज़ का काम मिलेगा कांट? स्पेस टाइम कैटेगरी का और कॉजालिटी का। Kant explains that through this theory of transcendental idealism, according to Kant, the human mind imposes a priori categories. Human mind imposes the categories. इसलिए वो यूनिवर्सल होती है, इसलिए वो नेसेसरी होती है, इसलिए वो फिनोमिना में ए प्रियोराइनेस लेके आती है, क्योंकि ए प्रियोराई रॉ मटेरियल नहीं है, ए प्रियोराई वो कंडीशन है माइंड की। एंड कॉजालिटी ऑन द सेंसरी डेटा इट रिसीव्स, दीज कैटेगरीज अलाउ अस टू हैव एक्सपीरियंस दैट आर स्ट्रक्चर्ड एंड मीनिंगफुल। कभी आपको हैपहज़र्ड ऑब्जर्वेशन हुआ है? नहीं हुआ। तो क्यों? रॉ डेटा तो हैपहज़र्ड ही होता है, बिकॉज माइंड के अंदर यूनिवर्सल कैटेगरीज है, जो कंडीशंस है जो वो इम्पोज करता है डेटा के ऊपर, और हमेशा इम्पोज करता है, इसलिए नॉलेज ए प्रियोरी होती है। दैट्स वाई आई कांट कंक्लूड दैट व्हाइल आवर नॉलेज बिगिंस विद सेंसेस और द एक्सपीरियंस, इट इज स्ट्रक्चर्ड बाय ए प्रियोरी जजमेंट, a priori judgment which are necessary for understanding the world in a coherent way। तो इस तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हो, और डेफिनेटली आप ह्यूम का भी ये रेस्पेक्टिव व्यू लिख सकते हो पहले, उसके बाद कांट का। बट ह्यूम वाला व्यू बहुत शॉर्ट में लिख देना, बस ये बता देना कि साइंस के जो कंक्लूजन थे वो ही इनवैलिड हो गए, क्योंकि साइंस मैटर ऑफ फैक्ट से डील करती है, और ह्यूम ने ये शो किया कि साइंटिफिक नॉलेज जो है या मैटर ऑफ फैक्ट जो है वो कंटिजेंट है, वो प्रोबेबल है, वो ए पोस्टीरियर है, उनके अंदर कोई भी नेसेसिटी नहीं है। ठीक है, तो कांट जो थे फिलोसफर ऑफ साइंस थे, ही रोज टू द ओकेजन एंड ही गेव बिफिटिंग रिस्पॉन्स टू द कंक्लूजन ऑफ स्केप्टिकल कंक्लूजन ऑफ ह्यूम। इस तरीके से आप कंक्लूड भी कर सकते हो इसी लाइन का इस्तेमाल करके। चलें आगे। व्हाट आर्ग्यूमेंट्स आर गिवन बाय मूर टू प्रूव दैट देर आर सर्टेन ट्रूइजम्स नॉलेज ऑफ विच इज़ अ मैटर ऑफ कॉमन सेंस क्रिटिकली डिस्कस। तो आप जानते हो कि मूर की कॉमन सेंस फिलॉसफी किस में है? डिफेंस ऑफ कॉमन सेंस के अंदर। ये तो हमने आपको एक दिन पहले ही पढ़ाया है, वैसे तो पढ़ा ही रहे हैं बार बार, और एक दिन पहले जो वीडियो बनाया था वेस्टर्न फिलॉसफी वो कंटेम्प्रेरी वाले पे, उसमें सब कुछ मेंशन्ड है, सारी बातें ये सब। तो डिफेंस ऑफ कॉमन सेंस व्हाट ही सेड, ही आर्ग्यूज दैट सर्टेन प्रपोजिशन सच एज द अर्थ एग्जिस्ट, आई हैव अ बॉडी आर ट्रूइजम्स, दे आर ट्रू फैक्ट्स, वी डोंट हैव टू डाउट देम, we cannot doubt them actually, that everyone knows them to be true through common sense। ऐसा कोई व्यक्ति है जो नहीं बोलता कि हैव अ बॉडी? मतलब इसके अगर एब्सर्ड, इसका अगर आप नेगेटिव बोलोगे आई डोंट हैव अ बॉडी, तो दैट विल बी एब्सर्ड, बिकॉज यू आर यूजिंग अ बॉडी पार्ट टू से यू आर नॉट बॉडी। आप माउथ को हिला रहे हो तो कहाँ से? बॉडी का पार्ट है ना। सो मूर्स मेन आर्ग्यूमेंट क्या है? मेन आर्ग्यूमेंट उसका ये है दैट दीज प्रपोजिशंस आर सो बेसिक, दीज ट्रूइजम्स, ये जो ट्रूइज्म है ये इतनी बेसिक हैं, एंड दे आर सो सेल्फ एविडेंट। देखो बेसिक और सेल्फ एविडेंट का मतलब ये होता है कि जिसको और ज़्यादा रिड्यूस नहीं कर सकते, विच आर अनएनालाइजेबल, मतलब जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट है ट्रुथ का वो ये ट्रूइजम्स है। सो दे डू नॉट रिक्वायर एनी प्रूफ, इनको प्रूफ की ज़रूरत नहीं है। प्रूफ की ज़रूरत किसको होगी? जो कोई कॉम्प्लेक्स फिनोमेना होगा। ये तो सिंपल है, बेसिक है। ही असर्ट्स दैट द स्केप्टिसिज्म, स्केप्टिकल व्यू, हमने बताया था उस दिन आपको, विच क्वेश्चंस दीज कॉमन सेंस इज फंडामेंटली फ्लॉड। क्यों है फ्लॉड? बिकॉज इट डिनाइज द वेरी थिंग्स वी नो विद सर्टेनिटी इन आवर लाइफ। इसके आर्ग्यूमेंट भी दिए उसने चाहिए, अगर आप चाहें तो बहुत शॉर्ट में लिख सकते हो। आर्ग्यूमेंट फ्रॉम कंपल्सिव एक्सेप्टेंस, आर्ग्यूमेंट फ्रॉम यूनिवर्सलिटी, आर्ग्यूमेंट बेस्ड ऑन ड्रीम, आर्ग्यूमेंट फ्रॉम इनकन्सिस्टेंसीज दैट कैन फॉलो इफ यू रिजेक्ट कॉमन सेंसिकल बिलीव्स। वो सब बातें बताओ इसके अंदर। फिर मूर ने क्या बोला? उसका सबसे फेमस आर्ग्यूमेंट स्टेटमेंट, here is one hand, here is another hand, argument to refute skepticism about the external world, claiming that common sense beliefs are more certain than skeptical hypothesis। तो अगर हम देखें, जैसे रसल भी बोलता है
रसल एक डायरेक्टली ह्यूम जैसा तो नहीं बोलता, ये सॉरी मूर जैसा तो नहीं बोलता, बट एक चीज़ बोलता है कि टू बिलीव इन सर्टेनिटी ऑफ एम्पेरिकल वर्ल्ड इज मच लेस अज्यूमिंग हाइपोथेसिस। मतलब एक हाइपोथेसिस होती है जहाँ पे आप मल्टीपल अजम्पशन कर रहे हो, तो उसके गलत होने के चांसेस ज़्यादा है। और ये जो बिलीफ इन द वर्ल्ड, एक्सटर्नल वर्ल्ड, द रियलिटी ऑफ एक्सटर्नल वर्ल्ड, ये सबसे लेस अज्यूम्शन वाली हाइपोथेसिस है, इसलिए हम इसको सही मान सकते हैं एज़ कम्पेयर टू इस वर्ल्ड को सही नहीं माने तो फिर एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, फिर क्या सही है, तो फिर वो हम मल्टीपल कहानियाँ बनाएंगे। ठीक है, जैसे कि आपको किसने बोला कि पानी जो है वो 100 डिग्री पे गर्म होता है, ये एक है सिंपल एक्सप्लेनेशन है। एक जने ने बोला कि पानी 100 डिग्री पे गर्म होता है, ऐसी भगवान की इच्छा है। आप बताइए सिंपल हाइपोथेसिस कौन सा है? सिंपल हाइपोथेसिस है पहले वाला, क्योंकि सेकंड में अगर आप भगवान की इच्छा वाला पार्ट हटा भी दो तब भी पानी गर्म होगा 100 डिग्री पे। दैट्स वाई दे आर सेइंग दैट दीज कॉमन सेंस बिलीव्स आर फार मोर सर्टेन देन दी स्केप्टिकल hypotheses which challenge them. Critics of Moore argue that his approach assumes what needs to be proven. अब जो क्रिटिक है वो तो भी कुछ बोलेंगे ना, क्रिटिक बोल रहे हैं कि भैया इस चीज़ को तो हमने सवाल उठाया था, तुम बोल रहे हो, तुम इसको एज गिवन ले रहे हो, एज इसको आर्ग्यू तो करो, बताओ तो सही, क्योंकि बहुत सारी ट्रूइज्म है, सो कॉल्ड ट्रूइज्म कॉमन सेंस के, तो जो गलत साबित होती है, सुपरस्टिशंस हैं कॉमन सेंस के अंदर। एक बिलीफ सिस्टम ये कि सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट, और बोलोगे सर ईस्ट से ही तो होता है, अरे सन कब राइज होता है? वो तो अपेरेंट मूवमेंट अर्थ के मूवमेंट पे डिपेंड करता है ना, सन कब राइज करता है ईस्ट से। तो कई सारी ट्रूइज्म है जिसको हम गिवन लेते हैं बट वो सही नहीं होती। सो आप इस चीज़ का क्रिटिसिज्म भी करो, ऑल्सो क्रिटिसाइज मूर, बट फाइनली यू से दैट वाइल मूर्स आर्ग्यूमेंट इज कंपेलिंग इट डज नॉट फुली एड्रेस फिलोसॉफिकल चैलेंज, पूरी तरीके से चैलेंज को नहीं कर पाती है। तो इस तरीके से भी आप इसको एंड कर सकते हो इस आंसर को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डज लेटर विटगेनस्टीन थिंक दैट लैंग्वेज स्पोकन बाय ओनली वन इंडिविजुअल अ लैंग्वेज दैट इज असेंशियली प्राइवेट इज नॉट पॉसिबल। अब बोलो, ये सवाल आपको पढ़ाया है, ये सारी चीज़ें अगर आप वेस्टर्न फिलोसफी वाला हमारा देखोगे क्रक्स फ्रॉम मूर टू स्ट्रॉसन, कोई बच्चा अगर उस वीडियो को भी देख जाता है, सिर्फ उस वीडियो को एग्जाम से पहले, तो सबके आंसर थे उसमें, ये वाले कंपलसरी क्वेश्चंस के आंसर थे उसमें, मूर वाला और ये वाला सवाल, विटगेनस्टीन वाला। अब देखें इसको क्या बोलता है विटगेनस्टीन। विटगेनस्टीन के दो पार्ट हैं, एक तो अर्ली और लेटर। अर्ली विटगेनस्टीन जो है वो टेक्निकल फिलोसफी में जा रहा था, वो लॉजिकल एटमिज्म की तरफ जा रहा था, ठीक है, वो भी रिडक्शनिस्ट अप्रोच लेके आ रहा था फिलोसफी के अंदर। बट जो लेटर विटगेनस्टीन है वो मोर प्रैग्मेटिक है, मोर जो है ऑर्डिनरी लैंग्वेज को सब्सक्राइब करता है, और फिलोसफिकल इन्वेस्टिगेशन के अंदर वो यही बताता है कि जो हमारी जो लैंग्वेज है इट इज़ अ शेयर्ड फिनोमिना, इट इज़ बेस्ड ऑन शेयर्ड फिनोमिना, इट डेवलप्स इन पब्लिक सेटिंग, यहाँ पे थॉट्स एंड कंसेप्ट शेयर होते हैं, तो ये कभी प्राइवेट में नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति अगर किसी आइलैंड पे अकेला रह रहा हो तो वो क्यों अपनी लैंग्वेज बनाएगा? कोई रीज़न ही नहीं है लैंग्वेज का, और बनाएगा भी तो भूल जाएगा, देयर विल बी मेमोरी स्केप्टिसिज्म। क्योंकि हम किसी पर्टिकुलर, हम लैंग्वेज में क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर तरीके का जो हमारा सेंसेशन है उसको ही तो डिस्क्राइब करते हैं लैंग्वेज के अंदर। बट कोई प्राइवेट लैंग्वेज होगी तो उसको मेमोरी स्केप्टिसिज्म हो जाएगा। वो कोई अपने फिनोमिन, उसने किसी सेंसेशन को लेट्स से बोल दिया कि दिस इज सेंसेशन ए, अब थोड़ी देर में वो भूल जाएगा, ए तो याद रहेगा उसको, बट वो सेंसेशन को भूल जाएगा कि कौन से सेंसेशन को मैंने ए बोला। तो कभी भी पॉसिबल ही नहीं हो सकती प्राइवेट लैंग्वेज। वहीं पे हम बोलें कि भाई आई हैव पेन, तो हम समझ में आता है हमको, क्योंकि हमको जो सेंसेशन है पेन का वो एक शेयर्ड पब्लिक क्राइटेरिया से आया है कि हाँ हर कोई जान जाता है अच्छा इसको पेन है, लेग में पेन है, कहीं पेन है, राइट। सो दैट इज़ देयर। इसलिए इस चीज़ को आप ध्यान रखें कि आपको ये बताई भी थी कि प्राइवेट लैंग्वेज जो है दैट इज़ नॉट पॉसिबल इन लेटर विटगेनस्टीन। और इस चीज़ को लैंग्वेज गेम से भी दिखाया है, फैमिली रिजेम्बलेंस के कंसेप्ट भी यूज़ कर सकते हो पासिंग में, बट स्टार्टिंग में तो ये बात बोलो कि फिलोसफिकल इन्वेस्टिगेशन में आर्ग्यूज दैट प्राइवेट लैंग्वेज कौन सी होती प्राइवेट लैंग्वेज? अ लैंग्वेज विच इज़ अंडरस्टैंडेबल ओनली बाय वन इंडिविजुअल, एंड दिस काइंड ऑफ लैंग्वेज इज नॉट पॉसिबल. This critique stems from idea that
लैंग्वेज फंक्शंस थ्रू पब्लिक रूल्स हैं। जैसे गेम के अंदर ऐसा नहीं होता है कि एक खिलाड़ी अपना अलग गेम अलग ही खेल रहा है, रूल नहीं, शेयर्ड रूल्स होते हैं ना। क्रिकेट में सब उस रूल्स को जानते हैं, फॉलो करते हैं। तो पब्लिक रूल्स हैं, कुछ शेयर्ड प्रैक्टिसेस हैं। कोई ऐसे नहीं कि अलग तरह का बल्ला लेके आ गया, जो बल्ला चलेगा उसमें क्रिकेट के मैच में वही लेके आएगा। अकॉर्डिंग टू विटगेनस्टीन, the meaning of words is not derived from private mental experiences, but from their use in public language games. A word's meaning is tied to how it is used within a community that follows certain grammatical rules. इसलिए विटगेनस्टीन ये भी बोलते हैं कि आप जो पहले बोलते थे कि मेटाफिजिक्स जो है इट इज़ मीनिंगलेस, वो गलत है। रीज़न बीइंग, आप मेटाफिजिक्स को मीनिंगलेस बोल रहे हो बाय फॉर्मुलेटिंग सम यूनिवर्सल रूल ऑफ डिक्लेयरिंग कि वेदर कोई चीज़ मीनिंगफुल है कि मीनिंगलेस है। कोई यूनिवर्सल रूल पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज मेटाफिजिक्स एक अलग लैंग्वेज गेम चल रहा है, एक अलग तरह की फॉर्म ऑफ लाइफ में डेवलप हुई लैंग्वेज है, और आपकी जो साइंटिफिक लैंग्वेज है वो अलग एक फॉर्म ऑफ लाइफ में डेवलप्ड है। वैसे ही पब्लिक, जैसे अगर आप कोई लीगल की बात करो तो लीगल लैंग्वेज गेम होता है, वो लीगल सेटअप के अंदर डेवलप हुआ है। जैसे वर्ड्स हैं सर्शरी, मैंडमस, तो इनका साइंस में क्या मतलब, कोई मतलब नहीं। इसका फिलोसफी में क्या, इसका मेटाफिजिक्स में क्या मतलब। तो मेटाफिजिशियन तो इसको मीनिंगलेस बोल देगा, बट क्या ये मीनिंगलेस है? नहीं, उस पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ लाइफ में उसका मतलब है। इसलिए विटगेनस्टीन जो है वो ज़्यादा यूज़ पे बात करता है कि डोंट लुक बट सी, बट वॉट टू सी, डोंट लुक फॉर द मीनिंग, सी द यूज़। देन विटगेनस्टाइन चैलेंजेस द आइडिया दैट वन कुड प्राइवेटली नेम सेंसेशंस। कर ही नहीं सकते आप, लाइक पेन, विदाउट एनी एक्सटर्नल क्राइटेरिया। कोई ना कोई एक्सटर्नल क्राइटेरिया होना चाहिए, वरना मेमोरी स्केप्टिसिज्म हो जाएगा, भूल जाओगे। Without a public criteria for checking whether language is correct or not, there would be no way to differentiate between correct and incorrect use. आप बता ही नहीं सकते, स्पीकर खुद ही नहीं पता पाएगा। दूसरी चीज़ ये कि प्राइवेट लैंग्वेज के अंदर कभी स्पीकर मीनिंग एंड ऑडियंस मीनिंग मैच ही नहीं हो सकता। स्पीकर मीनिंग ऑडियंस मीनिंग मैच नहीं होगा, क्योंकि स्पीकर क्या बोलना चाह रहा है, ऑडियंस क्या समझ रही है, क्योंकि कोई शेयर्ड क्राइटेरिया तो है ही नहीं। ड्यू टू लैक ऑफ शेयर्ड क्राइटेरिया, स्पीकर मीनिंग ऑडियंस मीनिंग मैच ही नहीं होगा, तो फिर लैंग्वेज का फिर कम्युनिकेशन ही पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो फिर लैंग्वेज बनाएगी, क्या करेंगे? लैंग्वेज का मतलब है कम्युनिकेशन करना। जब स्पीकर और कम्युनिकेशन फ्रूटफुल कब होती है? जब जो मैं बोल रहा हूँ और वो आप सुन रहे हो, हमारे बीच में एक शेयर्ड क्राइटेरिया है, तभी तो आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर कोई शेयर्ड क्राइटेरिया ना हो, मैं अपनी एक अलग ही भाषा में टून 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 करूँ, तो आप समझोगे इसको? नहीं समझोगे। फिर ये बात तो बहुत प्रैक्टिकल बात बोल रहे हैं ये हमारे विटगेनस्टीन जी। फिर उसके बाद बोलते हैं कि फिर आप इसको फाइनली कंक्लूड कर दो कि प्योरली प्राइवेट लैंग्वेज इज इम्पॉसिबल, बिकॉज लैंग्वेज इज इनहेरेंटली रिक्वायर्स शेयर्ड फॉर्म ऑफ लाइफ एंड सम कम्यूनल वैलिडेशन। कम्युनिटी होनी चाहिए उसको वैलिडेट करने के लिए, हाँ कि भाई सही यूज़ किया है उसने। आप देखिए मेघालय में लोग होते हैं, वो सीटी बजा के बात करते हैं, बट वो सीटी वाली जो उनकी भाषा है उसके अंदर भी वो लोग, उनका एक शेयर्ड क्राइटेरिया है, इसलिए वो भी लैंग्वेज मीनिंगफुल है उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज किरकेगार्ड डिफाइन ट्रूथ और सब्जेक्टिविटी क्रिटिकल डिस्कस। तो ये तो बहुत ही हम बहुत बार इस क्वेश्चन को पूछा गया हमने, और डायरेक्टली आपको देखें एक चीज़ बताई थी आपको, अगर आप हमारी बातों को सीरियसली फॉलो करते हैं तो ये बात बताई गई थी पहले भी, कि जो टॉपिक सिलेबस में एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है, सिलेबस में एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है, वहाँ से सवाल बनेगा ही बनेगा। और वहाँ पे जब सवाल बनेगा तो आपसे एक अच्छी खासी एक्सपेक्टेशन रखी जाएगी। ये सवाल दिया हुआ है सिलेबस के अंदर, प्राइवेट लैंग्वेज वाला सवाल दिया हुआ है लैंग्वेज के अंदर, वहाँ पे आप देखोगे सिलेबस फिलोसफी का तो वहाँ पे दिया हुआ है एक्सप्लिसिटली। डिफेंस ऑफ कॉमन सेंस दिया हुआ है डायरेक्टली। ये जो कांट का जो है ए प्रियोर जजमेंट, ये चीज़ दी हुई है। फॉर्म वाला जो टॉपिक है ये भी एक्सप्लिसिटली आपके सिलेबस में मेंशन्ड है टॉपिक में। तो यहाँ से क्या है कि आपको जब चीज़ें प्रिपेयर करके जानी थी, और हमने बताया भी था आपको उस दिन ये चीज़ जब डिस्कशन हुआ था ये जीएस के पेपर्स के बाद फिलोसफी के लिए। तो अगर रेगुलरली कांटेक्ट में थे तो कहीं पे भी आप गलती नहीं करोगे, और अगर कांटेक्ट में थे, दो तरह की बात हो सकती है, कांटेक्ट में थे और सब बात नहीं मानी, या कांटेक्ट में नहीं थे तो बात ही अलग है फिर तो अभी तो है आपको चीज़ें जैसे जैसे बताया जाए वैसे फॉलो करनी है, कहीं नंबर रुकेंगे नहीं, कोई चांस ही नहीं नंबर रुकने का, क्योंकि चीज़ें फिक्स्ड हैं यहाँ पे।
कोई चेंजेस नहीं है, बिल्कुल मैथमेटिक्स है, टोटल मैथमेटिक्स। यहाँ पे कोई सब्जेक्टिविटी नहीं है। इसके आंसर में जरूर सब्जेक्टिविटी है, क्योंकि बोल रहा है ट्रूथ है सब्जेक्टिविटी, बट हमारे अप्रोच में कोई सब्जेक्टिविटी नहीं है, हमारे अप्रोच में टोटल ऑब्जेक्टिविटी है। चलें इसको देखें। किरकेगार्ड इन इज कंक्लूडिंग अनसाइंटिफिक पोस्टस्क्रिप्ट। अब चलो ये वर्क का मैंने नाम लिया था, आप देख सकते हो, उस चीज़ की बात हमने की थी। फियर एंड ट्रेमलिंग की बात की थी, इधर और की बात करी थी, और इस बुक की भी हमने बात करी थी एक दो बार। खैर अगर इसका भी नाम नहीं लिखते तो फिर आप डायरेक्टली फियर एंड ट्रेमलिंग का भी बात कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे भी ये चीज़ मेंशन तो है ही। फेमसली असर्ट्स दैट ट्रूथ इज सब्जेक्टिविटी। आप देख रहे हो हीगल के कॉन्टेक्स्ट में ये आ रहा है, किरकेगार्ड। हीगल जो है हर चीज़ एब्सोल्यूट ऑब्जेक्टिव यूनिवर्सल, बट रियलाइज्ड ट्रूथ की बात नहीं कर रहा। क्या करता है हीगल? हीगल एक डायलेक्टिकल लॉजिक लेके आता है, एक डायलेक्टिकल लॉजिक लेके आता है। उस डायलेक्टिकल लॉजिक जो कि एक यूनिवर्सल, नेसेसरी एंड एब्सोल्यूट ट्रुथ की तरफ लेके जाता है हमको। बट किरकेगार्ड बोलते हैं कि ये ट्रुथ किसी काम का ही नहीं है, आपको यूनिवर्सल ट्रुथ, क्योंकि इससे किसी का भला नहीं हुआ आज तक। व्यक्ति का भला होता है रियलाइज्ड ट्रुथ से, जो उसके पर्सनली लेवल पे, अनुभूति के स्तर पे उसने जो उसने किया है अनुभूति। जैसे हमारी इंडियन फिलोसफी में बोलते हैं ना कि ये क्या है, ये चाहे से कुछ ही हो, ये श्रवण है, ये परियत्ति है, इट इज़ परियत्ति। बट परियत्ति से किसी का भला नहीं होता, पटिवेधन से भला होता है, अनुभूति से भला होता है। तो किरकेगार्ड भी वही बोल रहा है कि सब्जेक्टिव जो ट्रूथ है, रियलाइज ट्रूथ है, उससे फर्क पड़ता है। तो दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट एंड दैट इज़ डिफरेंट फॉर ऑल इंडिविजुअल, बिकॉज ये रियलाइजेशन बेस्ड है ना, पर्सनल एक्सपीरियंस पे है। So he means that truth is not merely a matter of objective facts, detached fact, but is deeply tied to individuals' personal subjective experience and commitment. बिल्कुल इंडियन फिलोसफी से कंपेयर करिए इसको, देखिए कितने बढ़िया मार्क्स मिलते हैं आपको। 10 में 7 भी दे देगा एग्जामिनर, खुश हो गया तो, कि आपको इतनी डेप्थ में पता है चीज़ें। फिर बताएं कि फॉर किरकेगार्ड इन मैटर्स ऑफ फेथ, एथिक्स एंड एग्जिस्टेंस, व्हाट मैटर्स इज नॉट ऑब्जेक्टिव करेक्टनेस ऑफ अ फैक्ट, बिलीफ, बट हाउ पैशनेटली एंड सिंसियरली वन होल्ड इट। ट्रुथ इज समथिंग दैट इज लिव्ड। देखो लिव्ड एक्सपीरियंस की बात की है हमने, बोला ना कि जैसे इंडियन फिलोसफी में बात होती है अनुभूति की, पटिवेधन की। बुद्धा के हमने 3 शब्द सीखे थे, परियत्ति, परिपत्ति, पटिवेधन, एंड नॉट मेरली थॉट के लेवल पे नहीं होगा। बुद्धा ने बोला कि थॉट के लेवल से कुछ नहीं होता। मेटा फिलोसफी जो है या फिर मेटाफिजिक्स जो है वो किसी को शांति नहीं देती, रियलाइज ट्रुथ देता है। फिलॉसफी से भला नहीं होगा आपका, इसलिए वहाँ तो बोलते भी नहीं थे, वो अव्यक्त नहीं रखते थे। किरकेगार्ड भी ये बोल रहा है। किरकेगार्ड कॉन्ट्रास्ट दिस विद द व्यू दैट इम्पर्सनल ऑब्जेक्टिव अप्रोच ऑफ साइंस एंड फिलोसफी। उस चीज़ को तो कंडेम करता है कि इनका काम क्या है, ये तो बुद्धिवादी चल रहा है बाती, ये तो बुद्धि के स्तर पे चल रहा है, अनुभूति के स्तर पे तो आदमी कोरा एकदम खाली है, बस बुद्धि के लेवल पे वो तो जान रहा है सब चीज़ें। तो किरकेगार्ड इस चीज़ को क्रिटिसाइज करता है, वेर ही बिलीव मिसेस दी एसेंशियल, एसेंस मिस कर देता है, पर्सनल नेचर ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। एक तरफ क्रिटिक भी है, देखो बाकी सारी चीज़ें आप लिख सकते हो, हमने शॉर्ट में किया है इसको। क्रिटिक भी है एक तरफ से, जो बोलते हैं कि किरकेगार्ड की अप्रोच से एक रिलेटिविज्म आ जाएगा, सबके लिए अलग अलग ट्रूथ हो जाएगा। बट किरकेगार्ड इसको चीज़ को डिफेंड करता है, वो बोलता है कि सब्जेक्टिविटी का मतलब है डीप पर्सनल एंगेजमेंट विद अ प्राइवेट रिलेशनशिप विद गॉड। पर्सनल, डीपली पर्सनल एंड प्राइवेट रिलेशनशिप विद गॉड। ठीक है, स्पेशली इन द रिलीजियस फेथ, जो 3 स्फेयर की बात करता है, जो 3rd स्फेयर अपनी मेटा एथिक्स की स्टेज, जहाँ पे टेलीलॉजिकल सस्पेंशन ऑफ द एथिकल, ये सारे शब्द भी डालो जो बताए थे आपको, ये सारे कीवर्ड बताए थे, सस्पेंशन ऑफ द एथिकल, मेटा एथिक्स। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, एग्जिस्टेंशियल चॉइसेस, जैसे कि इब्राहिम और आइजक की कहानी बताई आपको उस दिन। तो इब्राहिम ने अपने एग्जिस्टेंशियल चॉइसेस से ट्रुथ को डिटरमाइन किया, जो उसका एग्जिस्टेंशियल चॉइसेस थे उसकी तरफ से उसने जो गॉड की कमांड थी टू सैक्रिफाइस हिज सन, उसके ट्रुथ में, उसमें क्या ट्रुथनेस है, इसको किस हद तक फॉलो करना चाहिए, कोई ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया लेके नहीं आया वो, उसको जो पर्सनल लेवल पे, अनुभूति के स्तर पे चीज़ें दिख रही थी उसको उसने माना। इसलिए सब्जेक्टिव ट्रुथ जो है वो ओनली ऑथेंटिक वे है लाइफ का। तो
ऑथेंटिक लाइफ अगर आपको जीनी है तो सब्जेक्टिविटी में देखो, ना कि ऑब्जेक्टिविटी में। सब्जेक्टिविटी का मतलब ये नहीं रिलेटिविज्म, सब्जेक्टिविटी का मतलब है रियलाइज्ड ट्रुथ, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही है जैसे हमने डिस्कस किए थे, हमने बताई थी चीज़ आपको कि लॉग बर्कले इनमें से सवाल आएंगे, आए, कंपैरिजन भी आया हीगल से। स्पिनोजा का जो सवाल रिपीटेडली सवाल आता है, गॉड, ऑल इज़ इन गॉड, पैंथीज़म, ये सारे सवाल भी हमने डिस्कस किए थे, सब चीज़ें। ऐसे एक भी सवाल नहीं है जो डिस्कस नहीं हुआ। कांट का ऑब्जेक्शन ऑफ ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट, इस क्वेश्चन को तो शायद 3 बार पूछ डाला बीच बीच में हमने, है ना। एंसलम वाला भी बताया, डेकार्ट वाला भी बताया, फिर कांट का भी बताया, फिर कांट का क्रिटिक की बात हुई, और फिर लास्ट में कंक्लूजन। रसल का इनकम्प्लीट सिंबल और उसका रिलेशन विद एटोमिज्म, ये तो हमारे नोट्स तक में दिया हुआ है चीज़ें। ये सुपर 30 में भी अभी जो बैच चालू किया है उसके अंदर भी हमने ये चीज़ मेंशन की है। अब ये सवाल, ये बिल्कुल ईजी सवाल है। इज़ दी सेंटेंस ऑल थिंग्स आर ईदर रेड और नॉट मीनिंगफुल इन द सेम वे एज दी सेंटेंस द पेज इज़ वाइट अकॉर्डिंग टू लॉजिकल वे। अरे भाई हमने बताया था लिंग्विस्टिक थ्योरी ऑफ नेसेसरी प्रपोजिशन में, आपको यहाँ बात ही उसी करनी है, लिंग्विस्टिक थ्योरी ऑफ नेसेसरी प्रपोजिशन। तो यहाँ पे वो लोग साफ साफ बता देते हैं, दो फाड़ कर देते हैं, दो फाड़ में कर देते हैं चीज़ों को, कि भैया एक तरफ तो है एनालिटिकल स्टेटमेंट, एक तरफ है सिंथेटिक। एनालिटिकल वो है जो विच आर ट्रू बाय डेफिनेशन, जहाँ पे मीनिंग पार्ट डोमिनेट करता है, मीनिंग पार्ट ही है, ओनली मीनिंग पार्ट। सो ऑल थिंग्स आर ईदर रेड और नॉट रेड। अब ये बाय वर्च्यू ऑफ लैंग्वेज ही सही है, तो दिस स्टेटमेंट इज एनालिटिकल स्टेटमेंट एंड दिस पेज इज़ वाइट, ये जो है सिंथेटिक है, बिकॉज ये इट हैज़ टू बी वेरीफाइड इन एक्सपीरियंस। सो लिंग्विस्टिक थ्योरी नेसेसरी प्रपोजिशन के अंदर ये बात उन्होंने कर दी। डिस्कस विद आर्ग्यूमेंट, आप आर्ग्यूमेंट दे दो सारे जो उन्होंने बताए हैं, और उसके बाद क्रिटिसाइज कर दो क्वाइन से, क्वाइन बता देगा कि कोई ऐसा कोई है ही नहीं, और लेटर विटगेंस्टीन भी चीज़ को क्रिटिसाइज कर देगा। फिर तीसरा पूछता है कि अमंग द रैशनलिस्ट हुज एक्सप्लेनेशन ऑफ माइंड बॉडी इज मोस्ट कंसिस्टेंट विद ह्यूमन फ्रीडम एंड फ्रीडम ऑफ विल, डिस्कस क्रिटिकली। देखो बहुत ध्यान से देखना, बोलता है डिस्कस क्रिटिकली, क्यों बोलता है डिस्कस क्रिटिकली, क्योंकि तीनों के तीनों ही लफड़ेबाज हैं, मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम है तीनों के अंदर। ऐसा एक भी व्यू नहीं है जो पूरा कंसिस्टेंट हो। डेकार्ट जो है वो फ्रीडम ऑफ विल की पूरी बात करता है, माइंड बॉडी का दो फाड़ में कर देता है चीज़ों को, माइंड एंड बॉडी, कि जैसा कि कोई पायलट है और उसकी मशीन है, तो पायलट तो हो गया आपका माइंड और मशीन हो गई बॉडी, तो दोनों इंडिपेंडेंटली है चीज़। ऐसा नहीं कि पायलट और मशीन एक चीज़ है, नो, मशीन इंडिपेंडेंट चीज़ है। तो ये भी बात करता है, बट इंटरेक्शन में प्रॉब्लम आ जाती है। जो कॉजल इंटरेक्शनिज्म की थ्योरी देता है थ्रू पीनल ग्लैंड, उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं होती। फिर आता है स्पिनोजा। स्पिनोजा पायलट मशीन की बात नहीं करता, वो तो सिर्फ गॉड गॉड की बात करता है, गॉड इंटॉक्सिकेटेड फिलोसोफर, हर जगह गॉड ही गॉड। फिर कॉजल पैरलिज्म की बात करता है कि कहीं इंटरेक्शन नहीं होता, पैरेलल चीज़ें चलती हैं। एवरी मेंटल एक्टिविटी हैज़ अ फिजिकल करस्पॉन्डिंग फिजिकल एक्टिविटी विदाउट वन इन्फ्लुएंसिंग दी अदर, तो उसमें तो पैरेलली चल रही है दोनों, रेलवे ट्रैक के जैसे। फिर आते हैं लाइबनीज लेके आते हैं साइकोफिजिकल पैरेललिज्म, साइकोफिजिकल पैरेललिज्म। अब स्पिनोजा के अंदर देखोगे, स्पिनोजा में तो फ्रीडम गई बिल्कुल, क्योंकि हर चीज़ नेसेसिटी से ड्रिवन हो रही है। कॉजल चेंज जो चल रही है उसके थ्रू सब चीज़ें गवर्न हो रही है, नेसेसिटी के थ्रू गवर्न हो रही है, तो वहाँ फ्रीडम की बात ही नहीं है। वहाँ है ही फ्रीडम अलग ही लेवल की फ्रीडम। वहाँ तो फ्रीडम है इंटेलेक्चुअल लव के अंदर, वहाँ तो फ्रीडम है अपने आप को एनलाइटन करने के अंदर, अपने स्वरूप को जानने में है फ्रीडम। उसके बाद आप जानोगे कि चीज़ें कैसी है। फ्रीडम का मतलब ये नहीं वहाँ पे आर्बिट्ररी विल। वहीं पे लाइबनीज आता है, लाइबनीज बात करते हैं साइकोफिजिकल पैरेललिज्म के बीच में, कि मोनाड्स हैं वो सब सारे सेपरेट हैं, इंडिपेंडेंट है, विंडोलेस है, और कहीं पे भी एक दूसरे के ये कॉज नहीं करते, एक दूसरे से कोई एक्सचेंज नहीं होता उनका, तो वो सब इंडिपेंडेंट है, अपने फ्री एक्टिविटी है सबके अंदर, सब सेल्फ ड्रिवन है, तो फ्रीडम की बात करता है, ठीक है, वो सारे के सारे अपने। अब ये बोलता है कि अमंग द रैशनलिस्ट हुज एक्सप्लेनेशन माइंड बॉडी इज मोस्ट कंसिस्टेंट विद फ्रीडम ऑफ विल। अब देखो आपकी मर्जी है, आप किसी को भी, स्पिनोजा को मत करना। स्पिनोजा तो क्या है कि फ्रीडम और फ्रीडम ऑफ विल की थोड़ा सा अगेंस्ट ही जाता है। आपको चुनना है तो लाइबनीज और डेकार्ट में से चुने, ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा डेकार्ट, क्योंकि लाइबनीज जो है वो बात तो कर रहा था फ्रीडम ऑफ विल की, बट चला गया वो स्पिनोजा के जैसा।
क्योंकि वहाँ पे सब कुछ प्री एस्टेब्लिश हार्मनी की बात करता है। लाइबनिज प्री एस्टेब्लिश हार्मनी की बात करता है। तो जब प्री एस्टेब्लिश हार्मनी है तो फ्रीडम ऑफ विल कहाँ है? फ्रीडम ऑफ विल हो ही नहीं सकती ना प्री एस्टेब्लिश। कोई चीज़ प्री एस्टेब्लिश्ड है तो फिर फ्रीडम कैसे हो सकती है? डेकार्ट बात करता था फ्रीडम की प्रॉपरली, इसलिए डेकार्ट का आप बोल सकते हो कि डेकार्ट को फाइनली में जाके कि डेकार्ट ने जो व्यू दिया था दैट इज मोर कंसिस्टेंट विद ह्यूमन फ्रीडम। हाउएवर उसका जो माइंड बॉडी इंटरेक्शन वाली जो बात थी दैट इज स्टिल डिस्प्यूटेबल बिकॉज दैट वाज नॉट अ वेरी सेटिस्फैक्ट्री लॉजिकल एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो लास्ट में जाके यही हमने बात की है। कोई चाहे तो लाइबनीज को भी सपोर्ट कर सकता है, बट लाइबनीज के अंदर वही बात आती है, प्री एस्टेब्लिश हार्मनी की बात आ जाती है। तो फ्रीडम ऑफ विल की बात कर रहा है एग्जामिनर जो है। तो फ्रीडम ऑफ विल के हिसाब से देखें तो डेकार्ट ज़्यादा फ्रीडम ऑफ विल की तरफ जाता है। फ्रीडम का लवर था वो, क्योंकि वो आया भी उसी दौर के अंदर था डेकार्ट। ठीक है, तो इस चीज़ को देखें कि डेकार्ट का डुअलिज्म वो लेके ही इसलिए आया था कि फ्रीडम ऑफ विल भी हो एक तरफ, और दूसरी तरफ एक जो इंडिपेंडेंट सब्सटेंस है थिंकिंग कॉजिटेशन करने वाला, उसकी भी अपनी एक स्वायत्त सत्ता हो। तो इसलिए वो आर्ग्यूमेंट देता है नोशन ऑफ फ्रीडम के लिए। इंटरेक्शन प्रॉब्लम वहाँ पे भी होती है, बट इसको भी क्रिटिसाइज़ कर दोगे, लास्ट में जाके बताओगे कि वहाँ पे इंटरेक्शन की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, इस तरीके से आर्ग्यू कर लो इसको। मॉडल आंसर पूरा यहाँ पे है, तो एक बार देख जाना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू एग्जिस्टेंशियलिस्ट मीन बाय एग्जिस्टेंस प्रीसीड एसेंस। ये तो बहुत ही रेपिटेटिव क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ बताने के लिए है भी नहीं, मॉडल आंसर देख जाओ, ईजी क्वेश्चन है। बस ये है कि सारे पार्ट्स आपको एड्रेस करने, तो हमने पार्ट सारे बता दिए इसके अंदर मॉडल आंसर के अंदर। वाई डज हुसरल थिंक दैट एसेंसेस एग्जिबिट अ काइंड ऑफ कंटिन्यूटी बिटवीन कॉन्शियसनेस एंड बीइंग। तो हुसरल जो है वो फिनोमिनोलॉजी अपनी लेके आता है, उसके अंदर वो कर ही ये रहा है स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस, सिर्फ चेतना की का अध्ययन कर रहा है वो, कि वर्ल्ड क्या है, और वो वर्ल्ड क्या है जानना है आपको, तो आपको देखना पड़ेगा कि जो हमारे अंदर चेतन एलिमेंट है, कॉन्शियस एलिमेंट है, उसको वर्ल्ड कैसे अपीयर हो रहा है। ठीक है, तो पूरी फिलॉसफी इसके ऊपर ही फिनोमिनोलॉजी है, और इसी से वो जानता है कि मुझे फिलॉसफी के अंदर एपोडिक्टिक ट्रूथ्स मिलेंगे। एपोडिक्टिक ट्रूथ्स, एसोटोरिक ट्रूथ नहीं, जैसे हमने बात करी थी लास्ट जो फ्री वीडियो है, देखना उसको, मूर स्ट्रॉसन वाला फ्री वीडियो के अंदर 3 तरह के ट्रूथ की बात की थी, एसोटोरिक, प्रॉब्लमेटिक और एपोडिक्टिक। एसोटोरिक और प्रॉब्लमेटिक जो है वो रिलेटिविज्म की तरफ लेके जाते हैं, वो सब्जेक्टिविटी की तरफ लेके जाते हैं। फिलॉसफी में ऐसे ट्रूथ की जरूरत नहीं है, फिलॉसफी में जरूरत है एपोडिक्टिक ट्रूथ की। व्हाट मस्ट बी द केस, व्हाट मस्ट बी द केस, और ये ट्रूथ मिलेंगे उसको फिनोमिनोलॉजी के थ्रू। इसलिए अपनी जो किताब है लॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, उसके अंदर बाकायदा क्रिटिक करता है पहली वाली अप्रोच का और नई अप्रोच लेके आता है। खैर सवाल ये है कि वाई डज हुसरल थिंक दैट एसेंसेस एग्जिबिट अ काइंड ऑफ कंटिन्यूटी बिटवीन कॉन्शियसनेस एंड बीइंग। तो ऑब्जेक्ट है कोई भी, तो ऑब्जेक्ट की कोई एसेंस होगी ना, तो एसेंस आती है कॉन्शियसनेस, बट वो क्योंकि कॉन्शियसनेस इज पल्यूटेड, कॉन्शियसनेस जो है वो पल्यूटेड हो चुकी है, वो फ्लिकरिंग कॉन्शियसनेस है, इसलिए एसेंस को हम ग्रैस्प नहीं कर पाते। आती है, ऐसे नहीं कि एसेंस नहीं आती, वो तो ऑब्जेक्ट के साथ आती है, बट हम उस चीज़ को पे ध्यान नहीं दे पाते। तो उसके लिए बात क्या करता है वो, उसके लिए बात करता है रिडक्शन की, इपोकी की, कि अगर इपोकी रिडक्शन हम कर दें तो हम एग्जैक्टली एसेंस पे पहुंच जाएंगे, मतलब एग्जैक्टली एसेंस को ग्रैस्प कर पाएंगे। उससे क्या होगा, एसेंस के थ्रू कॉन्शियसनेस और बीइंग के बीच में कंटिन्यूटी होगी। जैसी बीइंग है उसका एसेंस है, और वैसे ही वो कॉन्शियसनेस को मिलेगा। इसे आपको नॉलेज ऐसी मिलेगी विच इज़ एपोडिक्टिक इन नेचर। ठीक है, तो इसमें सारे कंसेप्ट आप डिस्कस कर लेना, फिनोमिनोलॉजी और इंटेंशनलिटी वाले ये हमने बता दिए इसके अंदर, और ये सब चीज़ें मेंशन इसमें कर दी हैं, तो एक बार देख लेना। ये सारे पॉइंट्स आ जाने चाहिए आंसर के अंदर, कोई 15 मार्कर है, 15 मार्कर। और क्रिटिक भी मेंशन कर देना, ये हमने बताया भी था उस दिन भी कि हाइडेगर जो है वो क्रिटिसाइज़ करते हैं इस अप्रोच को, फिर लास्ट में जाके कंक्लूड। आप देखोगे हर कंक्लूजन के अंदर हमने कुछ ना कुछ डिक्टम वगैरह ऐड किए, इससे आपके आंसर और ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है।
लास्ट में जाते जाते, क्योंकि यही भी मार्क्स देगा एग्जामिनर। अगर उसने इतना बढ़िया कोई कंक्लूजन देख लिया तो 9 नंबर दे जाएगा 15 में से, हो सकता है 10 भी दे जाए, हो सकता है 11 भी दे जाए, डिपेंडिंग ऑन उसका कितना उसको अच्छा लगा। बट 9 से ऊपर जाए मिलेंगे, ये बात पक्की है, 9 तो मिनिमम मिलेंगे आपको, इतना लिख के आओगे तो। एक्सप्लेन द नेचर ऑफ टू डॉगमास विच क्वाइन रेफर टू इन द आर्टिकल डॉगमास ऑफ एम्पिरिसिज्म। ये भी हमने उस दिन बहुत क्लियरली समझाया आपको उस वीडियो के अंदर, क्वाइन स्ट्रॉसन वाले में, यहाँ तक कि टाइम स्टैम्पिंग करके ही बताया था कि भाई कोई बच्चे जल्दी में हो तो देख लें उसको, 2 मिनट के अंदर, 2-3 मिनट के अंदर पूरा समझा दिया था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन और उसका सिंपल आंसर। खैर, पहले हमने एक बार बात करी कि हम लोग 6 अक्टूबर से इंटेंसिव राइटिंग प्रोग्राम चालू कर रहे हैं। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने फिलॉसफी ऑप्शनल को कंप्लीट करा हुआ है सेटिस्फैक्ट्रीली, ठीक है। 2-3 बार उन्होंने, 1-2 बार कम से कम 2 बार उन्होंने देखा हुआ है सिलेबस को, एंड दे वांट टू स्टार्ट विद आंसर राइटिंग क्विकली एंड दे वांट टू प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ आंसर राइटिंग। तो उनके लिए तो 6 अक्टूबर से हमारा इंटेंसिव राइटिंग प्रोग्राम, जिसके अंदर 16 टेस्ट होंगे, 16 टेस्ट। और ये प्रोग्राम जो है ये फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी के अंदर पूरा हो जाएगा। इसके अंदर 16 टेस्ट हैं, हर टेस्ट का आपको मॉडल आंसर मिलेगा, प्रॉपर चीज़ें होंगी, एवेल्युएशन प्रॉपरली मिलेगा। और इसके बाद इसकी वैलिडिटी हमने 6 मंथ्स के लिए रखी है, ताकि अगर किसी वजह से आप कर भी नहीं पाते हो अटैम्प्ट तो आपके पास समय होगा। दूसरा ऑप्शन हम ये भी दे रहे हैं इसके अंदर स्टूडेंट की कन्वीनियंस के लिए, कि इसके अंदर जो सेक्शनल टेस्ट हैं उसको आप प्रीलिम से पहले अटैम्प्ट कर सकते हो, और जो फुल लेंथ टेस्ट है वो आप प्रीलिम के बाद भी अटैम्प्ट कर सकते हो, आफ्टर प्रीलिम्स ऑल्सो, ठीक है। फुल लेंथ टेस्ट आप प्रीलिम के बाद भी अटैम्प्ट कर सकते हो, दैट इज़ टोटली अप टू यू। बट ये सिर्फ फुल लेंथ टेस्ट के लिए मिलेगी ये वाली, सेक्शनल टेस्ट तो 6 महीने तक ही है। और आपको हमको इन्फॉर्म करना पड़ेगा ये चीज़ पहले कि फुल लेंथ टेस्ट सर मैं बाद में करूँगा, तो फिर आपके फुल लेंथ टेस्ट हम रिजर्व कर लेंगे प्रीलिम के बाद के लिए, और सेक्शनल टेस्ट आप अभी कर लो। और अगर आप चाहते हो कि 16 के 16 आपको लिख जाने हैं अभी, तो अभी लिख जाओ, 6 महीने की वैलिडिटी है। उसके बाद आप जो हमारे फुल लेंथ टेस्ट होते हैं वो अलग से प्रीलिम के बाद कर लेना, ठीक है। इसके अलावा सुपर 30 प्रोग्राम जो है वापस चालू हो रहा है नए सेक्शन के साथ 14 अक्टूबर से। जिन बच्चों को अपने फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने हैं फिलॉसफी के अंदर, डीप फाउंडेशन जिनको अपने बनाने हैं, जैसे वो कंसेप्चुअल लेवल पे हो या कंटेंट के लेवल पे हो, सुपर 30 से बेस्ट प्रोग्राम आज की डेट में पूरे मार्केट में कहीं नहीं है, किसी ऑप्शनल में नहीं है, क्योंकि 30 स्टूडेंट तो पहली बात कोई टीचर लेता ही नहीं, 100 से नीचे तो बात ही नहीं करता, ठीक है। और भी फिलॉसफी जैसे ऑप्शनल के लिए, और उसमें भी अगर आपको कोई एकदम ही डीप डिस्काउंट फीस पे दे दे चीज़ें तो वो तो पॉसिबल नहीं होती। और यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि सिलेक्शन, सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव है, सिलेक्शन, इसलिए फ़ीस भी हमने बहुत मिनिमल रखी है इसकी, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को सिलेक्ट करवा के इसके अंदर ये हमारा ऑब्जेक्टिव हमको फुलफ़िल करना है। तो इसके अंदर 100+ क्लासेस होंगी, फ्री मेंटरशिप, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़, PYQ के मॉडल आंसर्स मिलेंगे आपको, और मिनी टेस्ट होंगे। तो फिलॉसफी के अंदर अगर आपको अपनी जड़ें मजबूत करनी है, डीप अंडरस्टैंडिंग बनानी है कंटेंट की सबकी, तो सुपर 30 से बेस्ट कोई प्रोग्राम नहीं है आज की डेट में। आप जो मॉडल आंसर हमारे डेमो क्लासेस वगैरह आप वॉच कर सकते हो, मॉडल आंसर वगैरह हमारे देख सकते हो। तो ये 14 अक्टूबर से हो रहा है, और जो राइटिंग प्रैक्टिस के लिए है वो 6 अक्टूबर से हो रहा है। सो इफ़ यू वांट टू इंक्वायर, यू कैन इंक्वायर एट फिलोसफी हेल्प डेस्क, फिलोसफी हेल्प डेस्क। ये टेलीग्राम चैनल है हमारा, ID इंक्वायरी के लिए, इस पर हम आपको दे देंगे, तो उसके ऊपर आप इंक्वायरी कर सकते हो, एंड यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद मी डायरेक्टली इफ़ यू हैव एनी क्वायरी। सो दिस वाज ऑल अबाउट द वेस्टर्न सेक्शन। नेक्स्ट जो है वो इंडियन फिलोसफी के ऊपर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।